Question number 1. The diagram shows two cubes made from the same material. One cube has sides that are twice as long as the sides of the other cube. The weight of the small cube is W. What is the weight of the larger cube? Okay. Now, before we proceed, हमें question को अच्छे तरीके से understand करना है. And I'll highlight some key terms जो कि आपको याद रहनी चाहिए. The diagram shows two cubes. Okay. Cubes है आपके पास made from the same material. Material same है. One cube has sides that are twice as long as the other side. इसकी जो sides हैं इससे 2 times ज़्यादा हैं. The weight of the small cube is W. इसका weight है W. तो large cube का weight क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि अगर एक small cube है और एक large cube है, उनका material same है, तो it's obvious कि second cube का weight पहली cube से ज़्यादा होगा, right? Is that intuition like understandable? Yes, ma'am. Okay. अब आपको अगर उन्होंने मटेरियल का ना मेंशन कर दिया ना, तो रिमेंबर कि when something is made up of the same material as another thing, उन दोनों चीजों की डेंसिटी will be the same. क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, यानी कि अगर हम इसका एक यूनिट ले लें इस बॉक्स का और एक ही यूनिट इस बॉक्स का ले लें, तो उन दोनों यूनिट्स का मास सेम होगा. ओके, दोनों सेम अगर वॉल्यूम ले लें, दोनों यूनिट्स सेम ले लें वॉल्यूम की, तो उन दोनों यूनिट्स का मास सेम होगा, इसलिए डेंसिटी सेम होगी. You don't have to get into that deep concept, but what you need to remember is कि जब आपके पास मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी. So both of them have same density. First point. Okay. पहले आपको ये बात पता चल गई कि डेंसिटी सेम है, तो we will have to do something with the formula of density. One cube has sides that are twice as long as the sides of other cubes, the other cube. Okay. Now density का formula क्या होता है? Mass divided by volume. अगर आपको density find out करनी है, तो you need mass and volume, right? So let's find out the volume of these two cubes first, because we'll need that just in a few seconds. So volume of a cube. Volume का क्या formula होता है? Ma'am, x cube. That's right. So this is your cube number 1, this is your cube number 2. Volume का formula होता है cube के L cubed. जितनी भी लेंथ्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए L into L into L is L cubed. यहाँ पे आपके पास लेंथ है x. So you can say कि first cube का वॉल्यूम है, or let's call it V1. Oops. V1 equals x cubed. And what's V2 equal to? 2x cubed. V2. Are you sure? L cubed है. Length कितनी है? No, means 6x cube. Cube. 2 का cube क्या होता है? 8. That's right, 8. Cube का मतलब है वो नंबर 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 2 into 2 into 2. So 2 into 2 4, 4 into 2 8. अगर 2 raised to power 4 होता, जितनी भी पावर होती है वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है. 2 into 2 into 2 into 2. ओके, सो यहाँ पर 3 पावर है, इसका मतलब है कि 2 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 2 cube is 8 and x cube is x. So that is the volume of the second cube. जी. ये सेकंड क्यूब का वॉल्यूम आपने कैसे फाइंड किया? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कि जो इस क्यूब की लेंथ होगी उसको क्यूब कर देना. लेंथ जैसे कि ये L क्यूब्ड. I'll just write that here. जो भी लेंथ होगी क्यूब की उसको क्यूब करना. ओके,
इस शेप की जो भी लेंथ है उसका क्यूब कर लेना। उसकी लेंथ कितनी है 2x। तो आपने पूरे 2x का क्यूब लेना है, सिर्फ x का क्यूब नहीं लेना। नाउ सिंस दिस 2 इज इनसाइड द ब्रैकेट, आपने इसको भी क्यूब करना है और इस x को भी क्यूब करना है। सो यू विल गेट 2 का क्यूब होता है 8। एंड व्हाई? Because cube का मतलब है this 2 is being multiplied to itself 3 times. So you get 2 into 2 into 2, that is 8. और फिर x का क्यूब simply होता है x cubed. Is that clear now? Yes, ma'am. So v2 is 8 cube. अब हमें पता है कि density of 1 is equal to density of 2. So density of 1 is equal to density of 2. Okay? So we can say कि 1 का जो mass है m1 divided by v1 is equal to m2 divided by v2. इधर तक समझ आ गई? सेम मटेरियल है, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज लगा दिए यहाँ पर। डेंसिटी का फॉर्मूला है mass divided by volume, and I've added subscripts for the first and second cube. m1 by v1 equals m2 by v2. Is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Next, m1 divided by v1 कितना है x cube equals m2 divided by v2 कितना है 8x cube. Now let's see. I can cancel the x cubes from both sides, x cube or x cube cut kill, and you're left with m1 equals m2 divided by 8. अब आपको किसका वेट चाहिए? सेकेंड क्यूब का, राइट? तो I will make my equation in terms of the second mass. I can take the 8 to the other side. You will get 8 m1 is equal to m2. m2 का mass कितना है? 8 times m1 के mass जितना। इधर तक समझ आ गई? Yes, ma'am. Now, I have found out the mass. If I have to convert that to weight, I simply have to multiply it with g. And I'll show you guys why that isn't necessary in the end. So, this is equal to m1 into g, right? Yes, ma'am. And this is equal to w2 is equal to m2 into g. Oops. That's the formula for weight. So this is m1 into g and this is m2 into g. और हमें भी पता चला है कि m2 कितना होता है? 8 times m1. So I can write m2 की जगह I can substitute it as 8 times m1 into g. So w किसके इक्वल है? m1g के, और w2 किसके इक्वल है? 8 times m1g. Can I write it this way? w2 is equal to 8 times this m1g is the same as w. So 8 times w part c. मैंने यहाँ पे क्या किया? ये वेट किसके इक्वल था? m1g के, और ये w2 किसके इक्वल है? m2g के. m2g is equal to 8 m1 into g, and then I can write 8 here, or m1g w. m1g से मैंने ये w substitute कर लिया. So you get w2, or the weight of the larger cube is 8 times the weight of the smaller cube, 8w. ये इतनी ज्यादा कन्वर्जन करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लें. आई एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट किसी तरीके से करना चाहते हैं तो बस ये याद रखें कि अगर m2 का मास
8 टाइम्स है m1 से, अगर इसका मास इससे 8 टाइम्स है तो वेट भी तो 8 टाइम्स से ज्यादा होगा ना, राइट? Yes, ma'am. ये सब मैम आपको आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जो मैंने किया है रियल में ये हो रहा है, लाइक हो ये रहा है असल में। लेकिन आपको अगर आप कॉन्सेप्ट एक और भी यूज कर लेना कि अगर हमें पता चला है कि m2 यानी कि ये वाला जो मास है स्मॉलर से 8 टाइम्स ज्यादा है, तो फिर वेट भी स्मॉलर से 8 टाइम्स ही ज्यादा होगा। तो यू कैन चूज 8W। जी कोई क्वेश्चन था? यस मैम, मैम आपने ग्रेविटी की वैल्यू क्यों नहीं प्लग इन की? क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें, जरूरी नहीं है। जब दोनों साइड पे जी की वैल्यू सेम है तो आई जस्ट कंटिन्यू विद द लेटर जी। हम यस कोई नंबर कैलकुलेट नहीं कर रहे यहाँ पे, राइट? वी नीड आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, दिस वन। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू प्लग इन द वैल्यू। अगर आप वैल्यू प्लग इन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 9.81 m1, 9.81 m1। और यहाँ पर आप इसको 8 को 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इससे 8 टाइम्स से ज्यादा होना था, राइट? सो दैट्स लाइक जस्ट मेकिंग थिंग्स हार्डर फॉर योरसेल्फ एंड यू शुडंट डू दैट। इसलिए आई रिकमेंडेड कि जब आप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो पहले फॉर्मूला को रीअरेंज करें, एंड में नंबर्स प्लग इन करें। दैट्स द बेस्ट लाइफ चेंजिंग ट्रिक। एनी अदर क्वेश्चन अबाउट दिस वन? नो मैम। No, ओके, ma'am. नेक्स्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया ना वही लगेगा। नाउ आई वांट यू गाइस टू डू इट। Two cylinders P and Q are made of copper. The height of P is twice the height of Q. Diameter of P is half the diameter of Q. Which statement is correct? किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, या कितनी कम है, ये क्या है? Like I want you guys to go through all of these options and tell me the right one. The density of P is 4 times, या फिर P की डेंसिटी twice है, या फिर P की डेंसिटी equal है, या P की डेंसिटी half है Q से। Which one's the right option? मैम सी आंसर है, इजी है ये तो, पी की इक्वल होनी चाहिए। Okay, Hussein, what do you think? मैम मुझे लगता है डी आंसर है। Okay. Now both of you are gonna tell me why you think the answer that you picked is right. Then firstly, you go ahead. आपको क्यों लगता है कि आंसर सी है? मैम मुझे सी इसलिए लगता है क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, और जब भी मटेरियल किसी भी मेटल तो सेम है ना, इसलिए डेंसिटी सेम होगी। लेकिन मैम Excellent. पहले ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि मुझे लगा था कि जो छोटी चीज होगी, आपने बताया था कि स्मॉलर चीज का वॉल्यूम ज्यादा होता है और जो ज्यादा चीज होती है उसका वॉल्यूम कम होता है। Hmm. लेकिन आंसर सी बनता है क्योंकि वो दोनों एक ही मटेरियल से बनी हुई है, एक ही सेम मटेरियल, इसलिए डेंसिटी भी सेम होगी। Yes, that's right. When the material is same, density is same. और जब आप वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो that is a different thing, and I will recommend that you go back to that lecture and you see कि मैंने क्या relation बताया था. I told you the relationship between mass and density and mass and volume, right? अगर आप इन दोनों का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करें, लेट्स ट्राई टू सी कि क्या आता है। वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? दिस इज वन, दिस इज टू। मैम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दैट्स राइट। वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है बेस एरिया ऑफ योर शेप इनटू इट्स हाइट। बेस यहाँ पे सर्कल है आपके पास, सो यू कैन प्लग इन द फॉर्मूला ऑफ सर्कल्स एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर, और height of P is twice the height of Q. So if this is R,
P की हाइट Q से ट्वाइस है, सो अगर Q की हाइट h है तो P की हाइट कितनी होगी 2h, सो pi r square into 2h. Okay, now the diameter of P is half the diameter of Q, so this will be 2r. उन्होंने कहा है कि P का diameter 2 से half है, तो इसका रेडियस भी Q से half होगा, so if this is r, this is 2r. तो इसका वॉल्यूम है 2 pi r squared h, और इसका वॉल्यूम है, सेकंड का वॉल्यूम है, बेस एरिया क्या है पाई, रेडियस कितना है 2r इंटू स्क्वायर, सॉरी, इंटू हाइट इज h, सो यू गेट पाई और 2 का स्क्वायर है 4r स्क्वायर, सॉरी 4 pi r square height. Let me double check if this is right. Pi 2r square into height. Height of P is twice the height of Q, and diameter of P is half diameter of Q. G. So you see, you have gotten different volumes for these two. And remember, I told you guys that density is equal to mass divided by volume. अब आप कह रहे थे कि we learned कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, आप ये पॉइंट मेंशन कर रहे थे ना? Yes, ma'am. But the main part here is कि I specifically said कि थर्ड टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं गिवन कि दोनों सिलेंडर्स का मास सेम है. जब आपके पास फॉर्मूला गिवन है और आपने इनको रिलेट करना है डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ और डेंसिटी को मास के साथ, तो तीसरी टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए. यहाँ पर यू वांट द रिलेशनशिप व्हिच इज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? तो कंडीशन में मास कांस्टेंट होना चाहिए था दोनों सिलेंडर्स का, फिर आप इसकी डेंसिटी को कंपेयर कर सकते थे. लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा कि आपकी थर्ड क्वांटिटी mass constant है. That's why you can't use this concept here. So the concept here was that both of them are made up of copper, तो दोनों की डेंसिटी सेम है. Simple मैम like that. Yes. अगर मैथ कांस्टेंट होता फिर हमारे पास आंसर डी आना था. अगर मास दोनों का सेम होता तो मटेरियल सेम नहीं हो सकता था, क्योंकि that isn't how it works. तो अगर कॉपर के दोनों ना बने होते, लेट्स से दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते, तो इसका वॉल्यूम is 2 times more, Q का वॉल्यूम P से 2 times ज्यादा है. So if volume is 2 times greater, density will be half. फिर आंसर D होना था. अगर Q, sorry, hold on. No, sorry. I'm switching P and Q here. This is for Q. Wait a second. So if we talk about P का वॉल्यूम 2 से, sorry, why do I keep saying 2 instead of Q? Volume of P is half volume of P is half volume of Q, right? Volume of P is half volume of Q. So is that right? Yes, volume of P is half that of volume of Q. इसका मतलब है density of P would be twice the density of Q. B आंसर होना था. You're right. अगर आपके पास दोनों मटेरियल्स डिफरेंट होते और मास दोनों का सेम होता, ओके, कंडीशन है मास सेम, तो आप डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते थे. कैसे? कि अगर इसका वॉल्यूम इससे हाफ है तो इसकी डेंसिटी उससे ट्वाइस होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है. और अगर आपके पास
दोनों का वॉल्यूम सेम होता और मास डिफरेंट होता तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होना था। जिसका मास ज्यादा होना था उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी थी। एनी अदर क्वेश्चन अबाउट दिस वन? नो मैम। Question number 3. You have identical beakers and they contain the same mass. यहाँ पे आप डेंसिटी वाला रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको कंडीशन दे दी है कि दोनों में मास सेम है। There's a different liquid in each beaker. Different liquid का मतलब क्या है? दोनों की डेंसिटी सेम नहीं हो सकती। तो बी तो गलत है ऑप्शन। डिफरेंट लिक्विड्स का मतलब है कि सेम डेंसिटी नहीं हो भी सकती है अगर कैलकुलेशंस वर्कआउट हो जाए, बट it's like not something you can go ahead with right away. So, liquid Q has density rho. इसकी डेंसिटी है rho. What's the density of liquid P? इसकी डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। सेम मास है दोनों का। I'm just gonna write a quick formula. Yes. जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी ना, और जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। That's right. हाँ जी। तो फिर हमारे पास कौन सा आंसर होगा? मेरा ख्याल मैम फिर सी डी में से होना चाहिए ना? Yes, C is the right answer. That's correct. We can simply apply this density क्या होती है? Mass divided by volume. Mass दोनों का same है तो आप ये relation लगा सकते हैं कि density is inversely proportional to volume. Now, the concept that I want you to understand here is that of volume. Volume का concept understand करना है कि volume height से कैसे related है। Volume का formula मैंने आपको बताया था base area into height. दोनों की बेस सेम है क्योंकि बीकर सेम था, राइट? दोनों का बेस एरिया सेम है, so you don't care about the base area here. You only care about the height. तो you can also say कि volume is directly proportional to height. तो आप height से इसको कर सकते हैं कि density is inversely proportional to height. क्योंकि volume और height directly proportional है तो you can plug in h here instead of density. And you can say कि जिसकी height कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। Since you're focusing on liquid मैम P here, मैम ये it's- कम वाला कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हाँ जी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिक्विड ओके। यस, P की डेंसिटी कितनी होगी? P की हाइट h है तो इसकी डेंसिटी Q से 3 times ज्यादा होगी। Now that was like a conceptual way of doing it. I want you to understand one more way कि अगर आपको ये सोल्यूशन लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? ओके, सो लिक्विड P के मास को मैं MP कह लेती हूँ और इसके मास को MQ कह लेती हूँ। ओके, डेंसिटी ऑफ P is equal to mass of P divided by volume of P, और density of Q is mass of Q divided by volume of Q. दोनों का मास सेम है तो मुझे PQ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको सिंपल M लिख लेती हूँ दोनों को। M M. Okay. Now I can write here okay, density of P is M by volume of P and density of Q is M by volume of Q. I'm going to rearrange both of these equations in terms of M. So M is equal to density of P into volume of P, और दूसरी साइड पे M is equal to density of Q into volume of Q. इधर तक कोई confusion? नो मैम। दोनों mass equal हैं तो what can I do? I can equate this to this. I can say density of P volume of P is equal to density of Q volume of Q. Density of P is what you're finding. This is the question, density of P. Volume of P क्या है? Volume का formula लगाती हूँ मैं।
बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी वैल्यू है h, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्यू क्या है रो, वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट कितनी है 3h। इधर तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नाउ लेट्स कैंसिल द टर्म्स। बेस एरिया दोनों का सेम है तो दोनों साइड से बेस एरिया कैंसिल, h से कट हो गया। So what you're left with is density of P is rho into 3, or you can say density of P is 3 rho, like that. If you मैम have to do इससे the, भी सिंपल मेथड है sorry, मैम, ये पहले वाले मेथड से ज्यादा सिंपल है। okay, great. If you find this simpler, that's great. Any question or confusion here? नो मैम। Okay, great. Were you मैम saying something, Stan? Yes? यस मैम, आवाज क्लियर है? हाँ जी। मैम ये जब भी मास ऑफ लिक्विड सेम देते हैं तो लिक्विड क्यों डिफरेंट कर देते हैं? दोबारा पूछें। मास ऑफ लिक्विड जब सेम होता है तो लिक्विड क्यों डिफरेंट हो जाता है? हम्म, अगर लिक्विड सेम होता और दोनों का मास भी सेम होता तो वो हाइट भी सेम होती फिर। They want you to understand the relationship between density, mass and volume. इसलिए they will change one thing or another. हमेशा ऐसे नहीं होगा, ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस रिपीट कर लेते हैं इसलिए आपको लग रहा है कि जब भी सेम मास दे रहे हैं तो लिक्विड डिफरेंट कर लिए। What they're actually trying to do is to make sure you understand the relationship between density and mass and density and volume. Okay? अगर आप देखें कि अगर मास सेम होता, m सेम है और लिक्विड भी सेम है, तो दोनों लिक्विड्स, अगर दोनों लिक्विड्स पानी है, वाटर है, इफ यूर पोरिंग वाटर इन द फर्स्ट बीकर एंड वाटर इन द सेकंड बीकर और मास सेम है, तो वाटर अगर पहले बीकर में इतना वॉल्यूम कवर करे तो दूसरे में भी तो इतना ही टाइम लेगा ना, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता पीछे पूछने के लिए। ओके, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू डिफरेंट लिक्विड्स। एक लिक्विड ज्यादा जगह ले रहा है, वॉल्यूम ले रहा है, और दूसरा कम ले रहा है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। इज दैट क्लियर? यस मैम। Now, question number 4. This is a very simple question to do. A block is hung on a spring balance. The marker inside the spring balance is pulled down by the block. मुझे बताइए spring balance क्या measure करता है? वेट। Weight. Correct. Weight का unit क्या होता है? न्यूटन्स। Newtons. Newtons. Let's look at the options now. What can the position of the marker be used to determine? Now, mass in kgs. The first thing you have to do is to match the units. Mass kg. इसमें unit match हो रहा है? यस मैम। Mass newtons में हो सकता है? नो मैम। Moment newtons में होता है? लेकिन मैम बात तो उसकी हो रही है ना, स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस में तो हमेशा वेट होगा और न्यूटन होगा, तो Yes, I'm मैस gonna इनटू get to केजी that. किस तरह हो सकता I will get to that point in just a second. Firstly, let's confirm the unit points. Moment क्या होता है? Moment का भी unit newtons नहीं होता. We'll cover this in the section of moments. Weight का unit kg होता है? नो मैम। तीनों options गलत हैं. A is the right answer. Now, coming back to your question, why is A the right answer? Spring balance measure तो weight करता है, लेकिन look at the question. What can the position of the marker be used to determine? आपके पास अगर weight अगर आपको इससे मिल गया है, तो what can you do? Weight का formula है mg. You can divide that weight by g to get m. So you can use this to determine mass.
जब यूनिट्स मैच नहीं करे तो तीनों ऑप्शन पीछे वाले गलत है। अगर आपके पास ऑप्शन होता वेट ऑफ द ब्लॉक इन न्यूटन्स, फिर दैट वुड हैव बीन द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट सिंस दिस इजंट वर्किंग आउट, दिस इज द राइट ऑप्शन क्योंकि यूनिट्स मैच कर रहे हैं। और उसकी रीजन क्या है? अगर आपको वेट मिल गया यहाँ से, यू कैन यूज द फॉर्मूला W/G टू गेट मास। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि स्प्रिंग बैलेंस कैलिब्रेटेड होता है। ओके, कैलिब्रेशन क्या होती है? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम गोइंग ऑन इन इंस्ट्रूमेंट्स कि वो ओरिजिनली वेट मेजर करता है, लेकिन what happens, it has some system in its setup कि वो ऑटोमेटिकली खुद G से डिवाइड करके आपको मास दे देता है। सो अ लॉट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आर कैलिब्रेटेड। पहला रीजन क्या हो सकता है कि आप खुद इस वेट को G से डिवाइड करके M फाइंड आउट कर लें। और दूसरा क्या हो सकता है रीजन? ये स्प्रिंग बैलेंस कैलिब्रेटेड था तो ये खुद ही आपको G से डिवाइड करके kgs में आंसर दे रहा है। Those are the two reasons here. Is that clear? So this is your first reason, you divide it, and the second reason is calibration. Yes, Yes, ma'am. मैम। All right, yes. मैम जो मैथ्स होता है कि देखिए जब हमारे पास ग्रेविटी चेंज होगी तो मैथ्स भी चेंज हो जाएगा ना फॉर्मूला के मुताबिक? No. Mass will always be the same. I'll get back to that in just a second. Okay. Mass of an object is always the same. Mass क्या होता है? Number of particles in a body. Okay, so if you have an object, उसके number of particles नहीं change होंगे. Okay, so mass will always be the same. आप किसी भी planet पर चले जाएं दुनिया में या फिर universe में कहीं भी. I'm not sure beyond the solar system because I don't know. I think it should be the same. मैम Yes. लेकिन मैम यहाँ पे चेंज होता रहा है फॉर्मूला में। अगर आप जी की वैल्यू वो कर दें 6 कर दें कुछ और कर दें। अगर आप G की वैल्यू कुछ और कर देते हैं तो वेट भी तो कुछ और हो गया होगा ना? हाँ जी तो मैथ चेंज हो गया। No. अगर let's look at an example to help you understand this. Let's say you have Earth here and you have Moon here. Okay. So if you're on Earth, आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kilograms, तो G की वैल्यू है यहाँ पर, I'm gonna approximate it to 10, 9.8 से 10. तो यहाँ पर वेट कितना है? 200 न्यूटन्स। यहाँ पर मास अगर 20 kilograms है और G की वैल्यू क्या थी? 1.7 or 3? Let me double check. G on Moon is 1.7. Yep, 1.625. So approximately 1.7. Approximately 1.7. 20 into 1.7. 34. So your weight here is 20 into 1.7. 34 newtons. So अगर आप देखिए वेट भी चेंज हो गया और G भी चेंज हो गया, इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू 20. मास नहीं चेंज होगा, वेट भी चेंज हो जाएगा और G भी चेंज हो जाएगा। दोनों डिवाइड होकर एंड में जो आंसर होगा वो सेम ही होगा दोनों का।